Pankaj, are you here? Pankaj. Yes, sir. Good morning, sir. Very nice. Good morning. So, ladies and gentlemen, can we all unmute and welcome Pankaj Kodani? Welcome, Pankaj. Welcome, Pankaj ji. पंकज जी आपका स्वागत है। पंकज जी नमस्कार। वेलकम पंकज जी। वेलकम पंकज जी, पधारो हमारे देश। Welcome, Pankaj. Welcome. Very nice, जी. Very nice. Excellent. वेलकम पंकज जी। Excellent जी. Excellent है. Excellent है. Very nice. So, Pankaj, एक बार unmute करके आ जाओ जरा। Pankaj. Yes, sir. Thank you, everyone. Thank you so much, sir. What a batch! It's 435 participants in the batch. So, Very rocket. rocket लगे हुए हैं। Good. हाँ जी। हाँ? कॉल करने के बाद Sorry? सर कॉल करने के बाद भी कैमरा ऑन नहीं है। तो उन लोगों को बाहर निकाल के वेटिंग रूम में डालेना। सर उसमें डाल रहे हैं ब्रेकआउट रूम में। हाँ, ब्रेकआउट रूम में डाल लो और बोलो शेयरिंग चल रही है, जल्दी चले जाओ। पंकज जी आए हुए हैं, ज्वेलरी इंडस्ट्री से हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, बड़ा रॉकेट लगे हुए हैं, इनके भी रॉकेट लगे हुए हैं, देख लो, इनको सुन लो ताकि तुम्हारी रॉकेट लग जाएंगे। ठीक है। Very good. So yes, Pankaj, why don't you share? What do you do? What has been your experience? When did you join? What were your challenges? Yes, So on. sir. I am Pankaj Kodnani, and we are into wholesale of gold jewelry and manufacturing. My company name is Crown Jewels. We are based in Mumbai, in Kandivali, Charkop. The journey of BMP has been a very different journey. It's a life-changing journey for me, actually. Before BMP, everyone, like, we regularly do the business normal तरीके से, जो डैडी ने सिखाया, जो बड़ों ने सिखाया, you know, the procedures, the accounting, the management. और BMP आने के बाद it was a complete changeover, makeover, team alignment processes, काम करने के तरीके. Yes, you guys are also doing 4 a.m. उठ के पढ़ाई करना और सब करना, reading of books. It was an amazing journey, complete life transformation, business transformation, team building, and team ka vision, company ka vision, and an amazing experience. And all your dreams, believe me, can come true if you are dedicatedly doing this and implementing it slowly. Don't worry about the time. Don't worry about क्या race लगी है, क्या दौड़ लगी है. अपने pace से चलो, अपने pace से करो. And the main focus, the takeaway, what I had from the course is, it doesn't matter that, you know, you need to implement everything that is there in the course. The main core importance आपको जो लगता है कि हमारे business में ये लगा देने से rocket लग जाएंगे, उस पे फोकस करके पहले वो चीज पकड़ लो और उसको इम्प्लीमेंट कर दो. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. नो मैटर यू हैव 5 FMS or 50 FMS going, it doesn't matter. Even the 5 work rockets for you. Yes, sir. This is the main thing. Very good. Awesome. Why don't you share what do you do, which city you are in? So And like, what are the challenges, what are basic challenges before the course? कब किया course? सर हम लोग का कोर्स ये था Jan 22 का बैच था और हमारा कोर्स दिसंबर में खलास हुआ 22 में. अभी इसी टाइम पे अराउंड 6 months या एग्जैक्टली 4 months 5 months बैक. We finished in November 22, and after that we have started the ASP course also again with. So मतलब आप you are the course just before them. आप you are the last person to graduate. मतलब आपका कोर्स खत्म हुआ और इनका कोर्स शुरू हुआ. Yeah. Yes. Exactly, sir. Exactly. Very good. तो अभी आप लेटेस्ट हो, गरम निकले हो. Okay. So what were your challenges? So like in the jewelry industry, sir, it's a high capital intensive industry और सब लोग का यही challenge है कि high capital inventory बहुत ज्यादा है, inventory कम नहीं हो पाती है, पूरा पैसा inventory में जाता है. How do we, you know, manage the inventory over here? So sir की जो science थी, मतलब पहले हम लोग का भी यही struggle था
कि पूरा सीसी बैंक का लिमिट, पूरा यहाँ पूरा इन्वेस्टमेंट, एवरीथिंग इज गोइंग इनटू इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल्स आर पाइलिंग अप, फिनिश गुड्स आर पाइलिंग अप, सामने क्रेडिट लाइंस चल रही है, यू नो, वो सब में ही आगे बढ़ नहीं पा रही है। तो सर जो बताते हैं कि 2x 4x करना है, तो यही चैलेंज था कि यहाँ से कैसे निकले कि अपना आगे बढ़े, टारगेट्स अचीव होए, सेल्स ग्रोथ होए, बिकॉज पूरा फाइनेंस मैनेजमेंट वाज द डिफिकल्ट पार्ट। एंड लाइक सर इज एक्सप्लेनिंग कि बॉटल नेक्स तो इन इंडस्ट्री ऑल्सो, पहले हम लोग को लगता है कि बॉटल नेक्स अपने मैन पावर है, देन मशीनरी है, देन फाइनेंस है, बट एक्चुअली जब IMS केम इनटू प्लेस तो मेरे को सबसे बेस्ट मेरा लगा कि IMS मेरा बॉटल नेक था, और IMS जैसे इम्प्लीमेंट हुआ ये सब बॉटल नेक क्लियर हो गए एक एक करके, because we go on shifting our bottlenecks like truly the book is the goal. I hope everybody's read the book The Goal. एक बोटलनेक ठीक करने जाओ मैन पावर को तो मशीनरी आ जाता है, मशीनरी ठीक करने जाओ तो सीजनल डिमांड चेंज होता है, वो ठीक करने जाओ तो फिर टीम का प्रॉब्लम आता है, फाइनेंस का प्रॉब्लम आता है, बट यू हैव टू एक्चुअली मेजर एवरीवेयर एंड गो ऑन अचीविंग। इट्स लाइक सर सेड 80 इज द न्यू 100, यू कैन नॉट गेट 100% इन एवरीथिंग। आपने 80% या 70% भी अचीव कर लिया कोई भी बोटलनेक में, इट इज वेरी गुड, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन फटाफट से। फॉर मी IMS वॉज अ मेजर ब्रेक थ्रू, मतलब जैसे ही सर ने वो इन्वेंट्री शीट शेयर की थी, मुझे लगा कि यही मेरा ब्रेक थ्रू है। फर्स्ट डे पे ही वो शीट पकड़ के मैं अपने फिगर्स डालने लगा, अपनी कैटेगरीज डालने लगा, थोड़ा बहुत उससे खेलने लगा। Then in the course, in the session with Sanandya sir, when he gave an automated IMS sheet, जहाँ पे फुल किटिंग आना है, बॉम्ब आना है, ये सब आना है, वो आते ही लगा कि ये मैजिक हो जाएगा। अभी अगर बॉम्ब बन गया, फुल किटिंग हो गया और स्टैगर डिलीवरी हमने प्रॉपर कर ली, तो ये पूरा मेरा जो इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल का इतना बड़ा पाइल पड़ा है ऑलवेज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ये मैनेज हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। एंड टू टेल यू पीपल, टू शेयर विथ यू, my raw material inventory has not come down by half or 1/3. We are right now on 1/5 by using our IMS. वाओ, 1/5 मतलब पहले कितना था, अब क्या हो गया? सर पहले हम लोग का एक्चुअली मतलब इन टर्म्स ऑफ गोल्ड ज्वेलरी 10 to 12 kilos, मतलब अराउंड अ वैल्यू ऑफ 6 to 7 crores was always a raw material कितने inventory. केजी था, कितने केजी हो गया? So 10 to 12 kgs था, अभी सर 2 kgs है खाली। तो पहले कितना था, 10 से 12 केजी, अब 2 केजी हो गया। यस सर, 2 kgs रॉ मटेरियल पे आ गए अभी हम लोग, और प्रिसाइसली इतना ही उसपे सीजन वाइज जैसे आपने बताया है कि लो सीजन पीक सीजन में कितना लग रहा है, वो पैरामीटर्स डाल के उतना ही मेंटेन कर रहे हैं इन्वेंट्री। एज एन ऑर्डर इज कमिंग, बिकॉज ऑफ द बॉम्ब इज देयर, वी आर पंचिंग द बॉम्ब, एंड बॉम्ब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही न्यू इन्वेंट्री ऑर्डर होता है, न्यू रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम दैट। तो आप ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड पे हो कि नहीं हो? ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड पे, ऑर्डर व्हाट इज सोल्ड पे है, और ऑर्डर व्हाट इज इनकमिंग, सिंस वी आर होलसेलर्स अगेन, तो हम लोग इन्वेंट्री इतना रखते नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे ही क्लाइंट का ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर पंच होता है, उसका बॉम्ब सामने आता है, और बॉम्ब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वेंडर को रॉ मटेरियल का ऑर्डर जाता है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स को वो हिसाब से गोल्ड इशू होता है। सो प्रीवियसली तो ये सब डेटा था नहीं, तो हम लोग रैंडम चल रहे थे कि इतना रॉ मटेरियल ऑर्डर कर दे, इतना कारीगर को या कॉन्ट्रैक्टर को गोल्ड इशू कर दे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और एवरीवेयर देन देयर यूज्ड टू बी पाइल अप, थोड़ा बचा हुआ होता था वो हिसाब से। व्हाट वाज द बेसिक रीजन कि आपका इन्वेंटरी इतना कम हो गया, और उससे सेल्स फिर कम हुई क्या? सर सेल्स तो रॉकेट लग गए सर, मतलब उसके बाद तो, बिकॉज क्या है, इन्वेंट्री से जैसे ही गोल्ड फ्री हुआ, वी वर एबल टू प्रोड्यूस अवर R&D आइटम्स, जो हम लोग काफी टाइम से सोच रहे थे कि ये बनाना है, वी कुडंट मेक बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड एंड फाइनेंस। तो वो न्यू मटेरियल्स लॉन्च हुए, न्यू प्रोडक्ट लाइंस कस्टमर्स को दिखाने लगे, थोड़ा बहुत फिनिश गुड्स में भी इन्वेंट्री होल्ड करना चालू कर सके, बिकॉज रॉ मटेरियल से इन्वेंट्री फ्री हुआ, and we could, that's why grow more sales, we could go out, show more product lines, do more with the clients and get more orders. तो सेल्स कितनी बढ़ गई? So sales right now we are at 2x. प्रॉफिट और सेल्स? Sales are right now 2x sir, what we were having last year, उससे double है हमारी sales अभी। Profits also we are up about around sir 100% from last year. दिस इज अभी कोर्स खत्म हुआ है? अभी कोर्स खत्म हुआ है सर, बट ड्यूरिंग द कोर्स ही सर ये जैसे हम कर रहे थे, ड्यूरिंग द कोर्स ही ये फील होने लगा और वो सब होते जा रहा था, तो इट्स नॉट दैट कि अभी यस, दिस मार्च एंडिंग वाज आल्सो ऑलमोस्ट 2 times from last year. वेरी नाइस, अमेजिंग। And people who are asking my company name, I will type it in the chat box. It's Crown Jewels. We are on Instagram also.
अब कौन से शहर में हो? We are in Mumbai, sir. Mumbai, Kandivali, Charco. We have a factory there, a manufacturing unit. वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। हाँ जी, तो और क्या फर्क पड़ा? और या आपको पहले ये बताओ कि पहले कोर्स के ड्यूरिंग तुमको क्या प्रॉब्लम्स आई, ये बताओ पहले। क्योंकि कोर्स के ड्यूरिंग अभी ये लोग सब स्ट्रगल कर रहे हैं, काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, पीसी, एमआईएस, ये आपको याद है वो दिन? Sir, course के struggle तो ऐसे थे. I had also called you in between and I had shared this before also कि सर बहुत दिक्कत आ रही है, हमारा तो MIS वाला भी नहीं है, DME भी नहीं है. मतलब I think for 3-4 months in the course we did not even have a MIS person. Me and my EA were only doing everything. आपकी जो भी sheets आ रही थी, सनदे सर के जो भी आ रहे थे sessions, we were only doing because कोई MIS ही नहीं था हमारे पास. 4 months. सो और क्या चैलेंजेस थी? और फिर मतलब उसके बाद एमआईएस आ गया, फिर उससे काम हो गया? तो तो रॉकेट लगे, रॉकेट। मुझे ये शेयर करना है कि what happens during the course is we go on to look for the best MIS and the best salaries and best thing. Right now my team is here with me on the table also hearing this sharing. So we hired somebody who knew a little bit of advanced Excel. एडवांस एक्सेल वाली MIS को हायर किया, उसको सब वीडियोस दिखाए और उसको सर के क्लास भी ज्वाइन कराए और उसमें से जो भी ट्रेनिंग्स देनी थी, शीट्स दिखाई, ट्रेनिंग्स देनी थी. एंड शी इज द वन and my EA together helped us implement the whole process system, the whole FMS and the PMS. We did not have an MIS for 4-5 months. We were struggling badly. I myself was doing whatever is possible. But it was, I was not even a front bencher, मतलब काफी पीछे था. बट यही सोच के चला कि अगर ये 3-4 चीजें, कोर चीजें पकड़ के मैं कर लूं जो रनिंग बिजनेस में काम आती है, तो उसी से मेरा काफी अच्छा इंप्लीमेंट हो जाएगा. बाकी चीजें तो वी कैन कीप ऑन एडिंग, कीप ऑन ग्रोइंग वंस द साइंस इज विद अस. सर की जो बैक बेंचर्स हैं मतलब उनका काम हो जाता है, नहीं होता बाकी उस कोर्स के एंड तक? वो लोग उन लोगों को लग रहा है कि मेरा काम नहीं होता. 100% हो जाता है. खाली उनको उम्मीद नहीं छोड़नी है, उनको करना है. ये मन में बहुत बार बहुत लोगों को भी आता है कि सर बहुत प्रेशर आ गया, बहुत काम आ रहा है, 4 AM हो रहा है, बुक्स रीड नहीं हो रही है. डजंट मैटर. मैंने भी खाली 4 ही बुक रीड किए, सर ने हमको 45 बुक्स दिए आज तक तो रीड करने के लिए. नहीं हो पाए. प्रोडक्शन वीडियोस भी सर ने दिए हैं बट आई वाज नॉट एबल टू सी, मे बी आई सॉ 4 or 5. बट द थिंग इज योर फोकस शुड बी देयर कि क्या इंप्लीमेंट करना है, मैं क्या चाहता हूँ. जैसे सर आपको 10 ईयर प्लान बनाते हैं, 5 ईयर प्लान बनाते हैं, 3 ईयर प्लान बनाते हैं. You need to focus ki how will I implement these plans within my performing area. तो वो आप अगर फोकस राइट है और वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, इट डजंट मैटर कितना टेक्नोलॉजी या कितने FMS, वो आप कर लो. खाली कि एक एक करके एक एक चीज पकड़े करते जाएंगे, इट विल गो ऑन हैपनिंग एंड द टीम नीड्स टू बी अलाइंड. यू नीड टू अलाइन योर टीम इन द राइट मैनर. they are the people who will help you. Very nice. So why don't you show us some of your systems? So I have और PMS आपका तो मैन्युफैक्चरिंग है. yes sir मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा PMS है. तो PMS लगा, PMS लगने में क्या प्रॉब्लम्स आई? सर PMS हम लोग को जैसे आपने फ्लो चार्ट का साइंस सिखाया और बॉटलनेक समझ के हम लोग एक एक स्टेप बनाते गए. मतलब ऑर्डर रिसीव जैसे ही पंच होता है फैक्ट्री में, उसके बाद ऑर्डर फैक्ट्री को कैसे दिखना चाहिए और हर स्टेप का लेआउट बना के उसका टैट मेजर करके हम लोग ने पूरा चार्ट बनाया. चार्ट बना के हु व्हाट हाउ व्हेन, लाइक यू टोल्ड अस, वी पुट एवरीबॉडी असाइन टू ईच टास्क ओवर देयर और एक एक करके मेजर करके गए सर. मतलब काफी चेंजेस आई PMS में, ये निकालना पड़ा, ये डालना पड़ा, वो कॉलम चेंज करना पड़ा. बट मेरे को यही मैसेज देना है, अगर करेंगे नहीं तो होगा नहीं. मतलब इफ यू जस्ट कीप सेइंग इट हार्ड है, टफ है, नहीं हो सकता है, नहीं हो रहा है, सो लाइक सर सेज दिमाग मत लगाओ और स्टार्ट सिंपल, घटिया. सो जस्ट स्टार्ट, बेसिकली जस्ट स्टार्ट व्हाटएवर. जो अभी मेरी टीम भी यही बोलती है कि सर लेट्स नॉट गो टू द हाई-फाई टेक्नोलॉजी, लेट्स स्टार्ट बेसिक एंड देन रीच देयर स्लोली, रीच एवरी माइलस्टोन एट इट कम्स. यू डोंट नीड टू अचीव कि मेरे को 100 की स्पीड पे जाना है, 10 की स्पीड से, 20 की स्पीड से, 100 की स्पीड पे पहुंच जाएगा अपने आप सिस्टम. Very nice. Why don't you show us your systems? Some of the system. IMS दिखा दो, PMS दिखा दो. Okay, so मैं पहले आपको IMS ही स्टार्ट कराता हूँ. It is here. Guys, you want to see the systems और ये skip कर दें? Hello? मेरा स्क्रीन कहाँ गया? You can see. हाँ जी, दिख रहा है.
ओके ओके ओके। ये क्या है? सर ये हमारा इन्वेंटरी शीट है रॉ मटेरियल का, रिक्वायर्ड टू, हाँ समथिंग ऐसे है। क्यों मैंने तो एक सेकेंड अभी, ऊपर ऊपर जाना जरा, हाँ जी हेडर नहीं दिख रहा, हेडर नहीं दिख रहा, मतलब वो टॉप। जस्ट सेकंड, स्टॉप शेयरिंग हो गया। ओके नाउ I'm sharing my screen. आपके जो MIS का नाम क्या है, वो है क्या? Yes, yes, they are there, sir. उनको मैं शेयरिंग राइट्स देता हूँ ना। Sir, can you see the screen now? यस। Okay, so sir, inventory sheet अभी दिख रही है? This is the हाँ। okay. ये हम लोग की raw material inventory sheet है. Raw material required to make gold jewelry. So we outsource the basic wires, chains, and raw materials required. So this is where my stock was piling up. So as you can see, there is average daily consumption put against every product, and max levels are put. Opening stock is put. Total available येलो एंड रेड्स ही है। सर ने बताया है कि येलो इज गुड, हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। सो इसका टैग है रेड इज बीइंग ऑर्डर्ड सेम डे, जैसे ही रेड हो जाता है वो सेम डे ऑर्डर प्लेस होता है। सो ये अभी आप जो देख रहे हैं दिस इज 300 600 एंड द ग्रामेज इज शोइंग अबाउट 18 कैरेट का भी इधर है। ये 18 कैरेट की चीजें हैं यहाँ पे, 18 के। दिस यूज्ड टू बी 10 to 12 kilos with us सर। ये जो क्वांटिटी आ रहा है बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग आवर ज्वेलरी, ये 10 to 12 किलोस हुआ करती थी। जैसे ही हमने इस पे लेवल्स डाले, इसको कंट्रोल करना चालू किया और इसका मंथ वाइज हमने देखना चालू किया कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा पर्पल चल रही है, ज़्यादा येलो चल रही है या ग्रीन में चल रही है, उसको रिवाइज करके अगेन कमिंग बैक टू कंट्रोल द क्वांटिटीज। इसमें इन एंड आउट भी जो सर एक्सप्लेन किए हैं, इस पे हमने सर एक गूगल फॉर्म लगा दिया है। जो भी मेरा इन आ रहा है ये गूगल फॉर्म हमने वेंडर को दे दिया है। जैसे ही वो डिस्पैच करता है उसी समय वो एक गूगल फॉर्म भरता है, तो हमारी इन्वेंट्री में एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ही वो क्वांटिटी इन हो जाती है, चाहे पार्सल नेक्स्ट डे हमको रिसीव होता है। सो री ऑर्डर दैट नीड्स टू बी डन, वो क्वांटिटी लेस होके फिर री ऑर्डर होता है, तो डबल री ऑर्डर नहीं हो सकता है। ओके, वेरी नाइस। यस, और इसमें आउट में भी एक गूगल फॉर्म ये डाला हुआ है कि ये आउट जो जा रहे हैं फिनिश गुड्स, द फिनिश गुड्स आर गोइंग टू अ फिनिश गुड्स IMS शीट। तो अगेन हमने ये किया है कि सर मैनुअल, इसमें कोई भी मैनुअल एंट्रीज नहीं होंगी, ना ही फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में, ना ही रॉ मटेरियल, बिकॉज यूजुअली रॉ मटेरियल में कुछ टैंपरिंग हो गया तो पूरा स्टॉक नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग इज ऑपरेटेड बाय अ गूगल इन एंड आउट फॉर्म। यहाँ से आउट होगा, फिनिश गुड्स में इन होगा, वेंडर से आउट होगा और इसमें इन होगा। ऐसा है सर पूरा सिस्टम। गाइस, कैन यू सी दिस? समझ में आ रहा है? हेलो एवरीबॉडी। ओके, ग्रेट। तो इससे आपने अपनी इन्वेंट्री, आप कह रहे हो कि 12 kg गोल्ड से 2 kg गोल्ड पे ले आए। यस सर, एब्सोल्युटली। यही जगह थी कि हमको पता नहीं पड़ा था कितना वायर रखना है या कितना चेन रखना है, कितने छोटी छोटी आइटम रखनी है, तो हम लोग उसको रैंडमली फिल करके रखते थे अपने पास। कोई भी ऑर्डर आए तो कम नहीं पड़ना चाहिए।
और उसकी वजह से अब आपके पास से मतलब नॉट ओनली दिस कि सेल्स भी बढ़ गई उसकी। सर मेन क्या हुआ सर, योर साइंस की बॉम्ब बनाना है, तो हम लोग की ज्वेलरी में सर बॉम्ब बनाना इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस, बिकॉज प्रोडक्ट टू बी मेड रिक्वायर्स सो मेनी डिफरेंट एलिमेंट्स एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। अब उसमें क्या हुआ कि हमने एक, जैसे आपने कहा डेडिकेटेड सोर्स को हायर कर दो, वी हायर अ डेडिकेटेड सोर्स, उसको 2 महीना खाली बोला कि तुमको 5000 डिजाइन का खाली बॉम्ब बनाना है। आपने मतलब एक अलग आदमी रख लिया और उसको बोला सर अब बॉम्ब बनाओ। सिर्फ बॉम्ब बनाओ, बिकॉज 5000 डिजाइन है हमारे कैटलॉग में, और बैंगल्स है, नेकलेस है, चेन्स है, ब्रेसलेट्स है, रिंग्स है, एवरीथिंग इज देयर दैट वी डू, लॉन्ग नेकलेसेस है, हार है, चोकर है। तो एक पर्टिकुलर आइटम में कितनी चेन लगनी है, कितने बॉल्स रखने हैं, कितने फ्लावर कास्टिंग के रखने हैं, कितने ड्रॉपलेट्स रखने हैं, तो ये सब कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो एक डेडिकेटेड सोर्स लगाया, 2.5 months ही फिनिश द बॉम्ब फॉर ऑल 5000 डिजाइन। अगर वो आदमी हायर नहीं करते तो बॉम्ब बनता? पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि जो एवरी डे काम कर रहे हैं ना टीम को, कुछ नया काम अलाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो उनके प्रोसेस से हटके नया, बेटर टू हायर अ न्यू पर्सन। न्यू पर्सन को जो काम दो सर वो कर लेता है इमीडिएटली। वेरी गुड। तो आपने बॉम्ब बनाया, बॉम्ब सिर्फ इसलिए बना क्योंकि आपने एक डेडिकेटेड अलग से लड़का रखा और उसका काम सुबह से शाम तक सिर्फ बॉम्ब बनाना था, और अगर ये नहीं होता तो वो आपके बॉम्ब नहीं बनते। एब्सोल्युटली। और सर बॉम्ब बना इसीलिए ही हमको पता लगा कि हर प्रोडक्ट के पीछे मुझे एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी कितना चाहिए। सो यस, माय बॉम्ब इज रेडी, पीपल आस्किंग मी, और वो बॉम्ब से ही ये आइडिया आता है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितना चाहिए। सो यू कैन सी अब अपना वो दिखा दो, मैंने पीएमएस। so this is the bomb sheet. So हम्म people asking me over here कि बॉम्ब कैसे बनाया। so this is the bomb sheet. ये सपोज मेरी बैंगल्स है, ब्रेसलेट्स है, और ये सेट्स है यहाँ पे। अब ये सेट नंबर 1 में कटिंग कितना जाना है, वेट ऑफ हैंड वर्क कितना जाना है, वायर कितना जाना है, बॉल कितना जाना है, ऐसे हमने हर डिजाइन का यहाँ पे इतने सारे सेट से इन सब के बॉम्ब बना दिए हैं, बैंगल्स के बॉम्ब बना दिए हैं, एवरी प्रोडक्ट लाइन। सो देयर इज लॉन्ग सेट जो हम लोग में चलता है, ये उसका बॉम्ब है। सो हर एक की क्वांटिटी दिख रही है, 0 पॉइंट क्वांटिटी भी, मिनिमल क्वांटिटी भी है तो भी बॉम्ब में एंट्री की हुई है। ब्रेसलेट्स, बैंगल्स, एंड this is what I wanted to show is the bomb calculation sheet that we arrived at. So this is very beautiful thing designed again by the MIS. तो यहाँ पे जैसे ही ऑर्डर पंच होने के बाद ये सब ऑर्डर नंबर्स है पर्टिकुलर पार्टीज के, मैं कोई भी ऑर्डर नंबर सेलेक्ट करता हूँ, जनरेट बॉम्ब बटन क्लिक किया तो यहाँ पे समरी आ जाती है कि हैंडवर्क के लिए कितना मेटल चाहिए, कास्टिंग के लिए कितना चाहिए, शाश्वत हमारा वेंडर है कितना चाहिए, टोटल 906 ग्राम्स चाहिए टू मैन्युफैक्चर दिस ऑर्डर। उसमें कॉन्ट्रैक्टर वाइज कितना इशू करना है, मतलब ये 3 कॉन्ट्रैक्टर है, इनको सेपरेटली कितना गोल्ड इशू करना है टू मैन्युफैक्चर दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। What happened is behind every design we put a contractor name also in the 5000 design in the Google Drive. So जैसे ही वो डिजाइन नंबर पंच होता है, सपोज ये BG01, तो इसमें ये भी आ जाता है कि इसका कॉन्ट्रैक्टर मधु है, और मधु को ये बनाने के लिए ये सब आइटम्स इतनी सारी चाहिए, और टोटल ऑर्डर बनाने के लिए इतना गोल्ड चाहिए। So this gets calculated automatically, which used to take weeks to calculate for us. वेरी नाइस। वीक्स मतलब फिर तो वो कैलकुलेट होता ही नहीं होगा, वो तो उससे पहले तो बंदा ऑर्डर ही निकल जाता होगा। रैंडम ही चलता था, मतलब ये 1376 का अगर ऑर्डर है, 2 किलो का ऑर्डर है तो इसको दे दो, 500 ग्राम दे दो और ये काम चालू कर दे, फिर देखते हैं प्रोग्रेस कैसे होता है, ऐसा होता था सर काम। वेरी नाइस। ये अभी प्रिसाइज टू द मिलीग्राम ही काम होता है, और प्रिसाइज टू द मिलीग्राम ही ऑर्डर जाता है उसको। उसमें भी हमको ये भी पता लगता है कि वेस्टेज कितना है और वेस्टेज रीयूज कैसे करना है, उसका भी प्रोसीजर है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो if I even change any order over here, मतलब तो suppose पीएमएस दिखाओ जरा, यही पीएमएस है आपका? नहीं सर, पीएमएस भी दिखाता हूँ। अभी ये जस्ट ऑर्डर चेंज किया जस्ट टू शो दैट दिस इज वर्किंग, द बॉम्ब इज लाइव ओवर हियर। पीएमएस वी कैन go to the intranet. So this is our intranet where everybody logs in over here. We go into the production. डैशबोर्ड मत दिखाओ, पीएमएस दिखाओ। So उसी में ही उनका वर्किंग शीट है। they open their working sheets from there itself.
Production FMS. So this is our production FMS. Material received from contractor. It starts from receiving from the contractor. यहाँ पे issue to polish. स्टेप से रिसीव फ्रॉम पॉलिश में कितना लॉस है वो भी कैलकुलेट होके आता है. स्क्रीन कैन बी सीन सर. गाइस कैन यू सी द पीएमएस? सो आपको थोड़ा सा आइडिया होता जाएगा पीएमएस कैसे बनना है, क्या बनना है, आपका जैसा बनना है आप बनाओ. आपको पीएमएस बनाने में पंकज मुश्किल आई नहीं आई? क्योंकि अभी सबको मैंने पिछले हफ्ते ही पीएमएस बताया तो सब स्ट्रगल कर रहे हैं. आपने पीएमएस कैसे बनाया? सर मुश्किल आती है सर. PMS is little more complicated than a regular FMS because it is more technical over here depending on the industry what is required. But everybody is already operating in their mind as per the PMS. सब लोग का आज भी operation if there is no they are operating in that manner. बस वो mind का चीज एक बार पेपर पे लिख के फ्लो चार्ट बना देना है और उसको छाप देना है एक बार के लिए. And then you can keep correcting it every time you are working on it. Your team will only come and tell you what to correct because उनको problems आएगी. They will come sir ये ठीक नहीं है, इसको ठीक कर दो, ये ठीक नहीं है, ये step ठीक नहीं है, इसमें decision box चाहिए, it has to go back, the TAT needs to be changed, but something needs to be started somewhere, वरना वो नहीं होगा सर. मतलब आपने पीएमएस कैसे बनाया? सब स्ट्रगल करते हैं पीएमएस नहीं बन रहा सर, पीएमएस नहीं बन रहा, पीएमएस कैसे बनाओ, पीएमएस कैसे बनाओ. आप भी आपके बैच में भी सब चिल्ला रहे थे सर पीएमएस नहीं बना, पीएमएस नहीं हो रहा, पीएमएस नहीं हो रहा. आपने कैसे बना लिया? सर फोकस आपने जैसे बताया एक दिन 4 AM बैठ जाओ और बना दो शीट और उसको छाप दो, उसके ऊपर फिर काम करो. सो दैट इज व्हाट वी डिड सर, दैट इज व्हाट वी डिड. तो आपका पहला जो पीएमएस था वो कैसा था? वो भी बिल्कुल रॉकेट बन के आया था, कैसा था? नहीं सर, पहला पीएमएस तो हमारे देखने लायक नहीं था. आपको क्या दिखाए? और इट वाज लाइक दैट वी वर जस्ट वर्किंग ऑन बेसिक चार्ट्स, बेसिक मूवमेंट्स फ्रॉम वन थिंग टू अदर. देन वी अंडरस्टूड कि इसका टैट बरोबर नहीं है. देन वी अंडरस्टूड कि हमको इसका लॉस भी कैलकुलेट करना है. Then we understood कि every contractor का ledger भी auto बनना चाहिए. Why to work on the ledger separately? You know, so everything was being mapped. Then we wanted to know that suppose ये receiving process क्या है, उसका detail भी डाल दो. Casting process क्या है, customer order wise भी अगर filter डालना है तो वो भी डाल दो. Product wise भी filter डाल सकते हैं. मतलब aging भी calculate कर सकते हैं, कितना time कौन से process में लग रहा है. हाँ, तो बेसिकली आपने ये शुरू किया और इसको नॉर्मल एफएमएस स्टाइल शुरू करके फिर इसको धीरे धीरे बना दिया. Yes, absolutely. सर हमको तो split FMS में ही इतना struggle था. वही समझने में बहुत टाइम लगा कि split FMS कैसे चला है हमको. वेरी नाइस. ओके गाइस, ये समझ में आ रहा है सबको? और ये डिफरेंशिएशन मत करो एफएमएस पीएमएस, जो आपको समझ में आता है रोल आउट कर दो. पॉइंट इज स्टार्ट. सर आप एफएमएस से शुरू करना, एफएमएस बना के शुरू कर दो. तो ये इसको कंफ्यूजन ठीक कर लेंगे. हमारी बैच में भी काफी लोग अटक गए कि एफएमएस एंड पीएमएस का डिस्टिंग्विशिंग करने को. सो इट्स एन एफएमएस, देयर इज नथिंग. ये कुछ नहीं है कि पीएमएस सोच के कोई आदमी सोचते है बहुत टेक्निकल है. ये एफएमएस ही बनाओ आप, मतलब उसको अपने आप पीएमएस में कन्वर्ट हो जाएगा वो एज पर योर रिक्वायरमेंट. तो एफएमएस बनाओ और लॉन्च कर दो, छोड़ो इसको. So इसमें सब प्रोसेस है. रिसीव फ्रॉम रोडियम, इशू टू लेजर, रिसीव फ्रॉम लेजर, देन फिनिश गुड्स आर बीइंग इशूड. ये जब फिनिश गुड्स इशूड हो रहा है तो ये फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री में ऑटो चले जा रहा है. वहां पे वो इन्वेंट्री कोई और संभाल रहा है फिनिश गुड्स की, इसीलिए. एंड इससे दिस क्या फर्क पड़ा? इससे ऑन टाइम डिलीवरी में फर्क पड़ता है, वो बाकी सब चीजों में फर्क पड़ता है. क्या फर्क क्या पड़ा पीएमएस रोल करके? इसको बंद करो. ये बताना ही भूल गया. सो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्लाइंट्स के साथ थी. बंद करो जरा. सॉरी, एज ए स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो. ओके. हाँ, क्या फर्क पड़ा? पीएमएस से फायदा क्या हुआ? हमारी सबसे बड़ी इशू यही थी कि बिकॉज इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट दैट वी आर मेकिंग. हमारी बिल्कुल भी डिलीवरी टाइम पे नहीं होती थी कस्टमर से. एवरी क्लाइंट यूज्ड टू कंप्लेन कि वी आर लेट बाय 30 डेज. ऑर्डर देने के बाद वी आर लेट बाय 45 डेज. आई डोंट नो इन दिस बैच अगर कोई क्लाइंट है तो वो भी ऐसे ही बोल रहे होंगे हमारे बारे में. बिकॉज लास्ट टाइम शेयरिंग में एक क्लाइंट का फोन आया ये सुनने के बाद. सर राइट नाउ आई एम very happily and challengeable telling every client of mine कि we deliver perfectly one day before time.
जो भी आपका टाइम पीरियड कमिट किया है उससे 1 day बिफोर वी आर डिलीवरिंग नाउ, just because of this PMS and because of the IMS, because now we are able to monitor our time in each process and improve that time in that process. एंड Very- फुल किटिंग, एंड बिकॉज अभी सर बॉम्ब बनने से फुल किटिंग बहुत इजी हो गया हम लोग का, मतलब एग्जैक्टली सब कलेक्शन करने के बाद ही हम लोग प्रोडक्शन चालू करते हैं। वरना क्या है, प्रोडक्शन चालू करते थे, वेट करते थे रॉ मटेरियल आने के लिए, लेकिन अभी पूरा कलेक्ट होने के बाद ही सब चालू हो रहा है और परफेक्ट। जब आपने फुल किटिंग शुरू किया था और आपका माल नहीं आया था, तो फिर आपने प्रोडक्शन चालू की, मतलब फिर क्या किया था? वो बोलेंगे ना प्रोडक्शन चालू कर दो सर, माल आ जाएगा। वही हो रहा था सर, क्या है कि ऑर्डर आ गया, फिलहाल ये ऑर्डर चालू कर दो और वेंडर को ऑर्डर दे दो। इस बीच में दूसरा अर्जेंट ऑर्डर आ गया तो वो चालू करके उसको डिलीवर कर दिया, ये ऑर्डर होल्ड हो गया। तो ऐसे पाइलॉन होके बहुत सारा मेस हो रहा था सर। बट नाउ इट इज वेरी फोकस्ड एंड क्लियर कि तुम्हारा प्रोडक्शन शीट रेडी है, बॉम्ब रेडी है, जैसे ही पंच किया ये पर्टिकुलर इसी में जाना चाहिए और इसी से जाना चाहिए आउट, तो वो परफेक्ट टाइम पे हो रहा है काम सर। नहीं, बट जब आपने रोल किया था उस समय क्या चैलेंजेस आए थे? अभी तो आप ऐसे बोल रहे हो जैसे सब कुछ रॉकेट लगे हैं, रॉकेट तो लगे हैं, मगर उस समय क्या चैलेंज आए थे, ताकि दीज पीपल कैन रिलेट टू इट? उस समय चैलेंज आए थे कि आपने पहली बार किया हो गया सब? सर बहुत काफी चैलेंज आए थे, मतलब अलाइनिंग एवरीबॉडी एंड डूइंग ईच स्टेप एट अ टाइम, लाइक अगेन द साइंस ऑफ दैट बुक गोल कि हर जगह बॉटलनेक आ रही थी। अगर हम लोग ये ठीक करने जा रहे हैं तो दूसरे का टैट खराब हो रहा था, वेंडर को ठीक करने जा रहे हैं तो घर यहाँ का टैट खराब हो रहा था, ऐसा हो रहा था। वेंडर को करना ही नहीं है, उसको गूगल फॉर्म ही नहीं भरना होता था उसको, कि मैं क्यों करूं, मतलब व्हाई एम आई डूइंग दिस। We had to explain to him also कि you can see all your delivery schedules and all our orders on the Google sheet, will share it with you। आपको सब रियल टाइम डेटा दिख रही है, आपका अकाउंट भी रियल टाइम पूरा हो रहा है, अकाउंट मिलाने की जरूरत नहीं है, TDS GST सब उसमें दिख रहा है आपको। आपने क्लाइंट के साथ ही शेयर कर दिया सब कुछ? यस सर, सब सब अभी तो हम लोग सर क्लाइंट के भी डैशबोर्ड्स बना के उनको एक एक करके देते जा रहे हैं, लाइक यू हैड टोल्ड अस टू ट्रैक देयर डेटा, टू ट्रैक विच प्रोडक्ट इज सेलिंग, विच इज देयर रॉकेट प्रोडक्ट, विच इज देयर रॉकेट क्लाइंट, सब क्या हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रियली नाइस। ओके, तो जस्ट शो अस योर शीट वंस अगेन, योर वेबसाइट, इंट्रासाइट। Yes, sir. द इंट्रासाइट, This is the one. तो ये फैक्ट्री की FMS क्या? एक मिनट, ये क्या है? तो शी इज हैंडलिंग द प्रोडक्शन, तो ये इसके अंडर क्या क्या काम है इसके, तो इसकी सब लिंक्स, ये सब शीट्स इनकी है जो फैक्ट्री के संभाल रही, परचेस FMS, स्टॉक, टू डू लिस्ट इनका यहाँ पे। रुचिता कौन है? रुचिता इज हैंडलिंग द फैक्ट्री FMS पूरा प्रोडक्शन। मतलब क्या है? प्रोडक्शन हेड है, क्या है? सर पूरा डेटा एंट्री और प्रोडक्शन को मैप करना पूरा। नहीं, मैं कह रहा हूँ PC है, फैक्ट्री हेड है, कौन है? PC है सर, PC है। तो ये PC अकेले सारा फैक्ट्री संभाल रही है? अकेले सर, मैनेजर को फ्री कर दिया है, मैनेजर पूछ रहा है क्या करूं। मैनेजर, एक मिनट, अब प्रोडक्शन हेड फ्री हो गया? बिल्कुल फ्री हो गया सर, बिल्कुल फ्री हो गया। तो अभी प्रोडक्शन हेड सब ये नहीं कर रहा, ये PC अकेले संभाल रही है पूरी फैक्ट्री? सर प्रोडक्शन हेड सोच रहा है कि ये सब चीज मुझे ऑनलाइन डैशबोर्ड दिख रहा है, पूरा कितना काम कहाँ चल रहा है, कितना गोल्ड रिक्वायर्ड है कौन सा ऑर्डर के लिए, कितना प्रोडक्शन, कौन से कारीगर ने कितना प्रोडक्शन किया, वो सब डेटा यहाँ पे दिख रहा है उसको। तो वी आर ओनली टेलिंग हिम कि यू नीड टू नाउ फोकस ऑन ग्रोथ एंड न्यू R&D। नहीं, तो प्रोडक्शन हेड इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन? नो लॉन्गर इन्वॉल्व सर इन प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हेड आपके बैच में बाकी सब लोगों के भी सारे प्रोडक्शन हेड फ्री हो गए थे? यस 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 सर, यस यस। ये करके फिर प्रोडक्शन हेड चिल करता है? क्योंकि इसमें सर मतलब इसमें कोई भी आप शीट खोल दो तो इसका पूरा मैपिंग रुचिता ही कर रही है, एंड शी नोज राइट फ्रॉम द ऑर्डर डे पंच टिल द ऑर्डर डिलीवर्ड इज फिनिश गुड्स की कहाँ पे उसको कहाँ पे ठीक करना है। वेरी नाइस। सिमिलरली बाकी सब लोग का भी ऐसा ही है, मतलब और किसी और का भी अपन अगर देखते हैं डिपार्टमेंट सेल्स का भी है तो वो भी ऐसा ही है, सेल्स एंड मार्केटिंग में है। So this is Rupal, she's sales head over here, and these are her things that need to be done। तो इनका ये है, इनका भी FMS चल रहा है, O2D वाला FMS चल रहा है पूरा। तो ये एक क्लाइंट है, ये क्लाइंट हम लोग का डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इसका अलग से ट्रैकर बनाया हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर कैसे परफॉर्म कर रहा है NBJ करके। हॉल मार्किंग में गुड्स जा रहे हैं, गुड्स डिस्पैच हो रहे हैं, फॉर्म रिस्पॉन्सेज है इनके एवरी डिस्पैच के ऊपर, क्वालिटी चेक का है इधर, डिस्पैच चेकलिस्ट, स्टॉक शीट है इनका, फिनिश गुड्स का यहाँ पे।
So they can open their every FMS over here and they can work. जो लगभग तो सब Google Form से ही हो रहा है, बैकएंड पे शीट को टच नहीं कर रहे कोई भी। तो अब आपको शीट देखने की जरूरत नहीं है, ये सब डैशबोर्ड्स पे आ गए। सर ये इंट्रानेट भी आज मैंने 3 महीने बाद खोला है सर। वेरी गुड। और ये सब आपने कहाँ सीखा? आपको पहले आता था या ये सीखा है? कहाँ सीखा? और कहाँ आता था सर, गूगल ड्राइव नहीं पता था। तो ये सब कैसे सीखा आपने? सब ये आपकी क्लास में और सनदिया सर से सीखे सर, गूगल शीट्स का एवरी वर्कशॉप अटेंड करके, टेक्नोलॉजी वर्कशॉप अटेंड करके, एवरीथिंग इज बीन टॉट बाय सर एंड द टीम ओवर हियर। इनफैक्ट कहीं पे भी अगर दिक्कत भी आई है तो हैंड होल्डिंग की, कॉल करने की, सबको ट्रेन करने की, डीएमई को भी ट्रेन करने की, यू नो, we had a very good journey sir. Thank you very much again for this, but I can show this to you today. वेरी नाइस। सो नेट ऑफ नेट, व्हाट वर द रिजल्ट्स? अब आपको ऑपरेशंस में, हफ्ते में ऑपरेशंस चलाने के लिए, रेगुलर ऑपरेशंस जो होता है कंपनी चलाने के लिए, हफ्ते में कितने दिन जाना पड़ता है? Sir, operations, regular operations, so believe me, my EA and my DME are completely handling. मतलब हेल्प टिकट भी रेज होती है, वही रिजॉल्व कर देते हैं। मेजर इश्यूज तो कोई आते नहीं है लगभग ऐसे। और क्योंकि वो HOD मतलब मैनेजर फ्री हो गया है, तो उसको भी ये टास्क दे दिया कि मेजर प्रॉब्लम सॉल्वर बना दिया। PS, he is the main problem solver for major areas. Basic problem solving is done by the EA and the DME. मतलब मेरे यहाँ तक तो लगभग हार्डली कुछ प्रॉब्लम आती भी है मेजर डिसीजन में। अगर FMS में कुछ बड़ा चेंज करना है तो ही आता है। तो पहले आप बिफोर द वर्कशॉप आपको प्रॉब्लम आती थी? तो वही था, फायर फाइटिंग एवरी डे, फोन कॉल चालू है, ये चालू है, वो नहीं हो रहा है, मशीन हैंगअप हो गई, प्रोडक्शन नहीं है, गोल्ड अवेलेबल नहीं है, यही सब चीज चलती थी जो रेगुलर सबके साथ चलती है। अभी 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 ऐसी कॉल्स आती हैं? सर they are handling everything and in fact ये FMS से तो हम लोग अभी एक स्टेप आगे जा रहे हैं, सब चीज का डैशबोर्ड बना दे रहे हैं। तो अभी ये कर दिया है कि डेली जो क्वेश्चन आंसर्स है कि कितने पेमेंट आउट रहे हैं, कितने डिस्पैच जाने हैं, किसका गोल्ड आना है, कितने ऑर्डर्स वर्क इन प्रोग्रेस है, ये सब डैशबोर्ड, लाइव डैशबोर्ड एज अ स्कोर कार्ड बना दिया है, जो एवरी टाइम टिक हो रहा है। ऑन एवरी एंट्री इट इज टिकिंग आल्सो इन चेंजिंग द डैशबोर्ड। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। सो एनी अदर रिजल्ट्स यू गॉट? सो आप ये कह रहे हो कि और डेट और ऐसा कुछ फर्क पड़ा उसमें, लोन डेट? सर यू हैड स्पेसिफिकली टोल्ड अस सीसी कम कर दो, पर हमने उसको ग्रोथ के लिए यूज किया है, हमने न्यू क्लाइंट्स और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया है। हाँ, इन्वेंट्री में से फ्री होने के बाद इट्स बिकम मोर फ्रूटफुल, मोर जनरेटिंग फॉर रेवेन्यू, जनरेटिंग फॉर अस, बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स कैन बी शोन एंड सो वो मेंटेनेंस में जा रहे हैं हम लोग एंड ग्रोथ में जा रहे हैं फ्रॉम दोस डेप्थ। ऐसा कुछ वो अटका हुआ नहीं है कुछ भी। ओके, very nice. So net of net, what would be all your results? So net of net, yes, you have motivated us for 2x to 4x profits, 2x turnover and 4x profits. So we are striving and achieving for that, and I am very sure by next year 2x तो सब कुछ हो ही जाएगा, ऐसा है। Liquidity काफी फ्री हो गई है because liquidity अच्छी आ गई है। So before we used to buy in credit and everything, 100% it's become cash dealing now. टोटल पहले क्रेडिट सर, रॉ मटेरियल पहले, क्योंकि हमारे पास क्वांटिटी बढ़ा था तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं था, तो काफी रॉ मटेरियल क्रेडिट में भी ले रहे थे हम लोग। अब टोटल नेट ऑफ नेट कैश में क्रेडिट, इनफैक्ट एडवांस में बाय कर रहे हैं हम लोग रॉ मटेरियल, नॉट इवन कैश। पहले एडवांस दे रहे हैं, उसका बेस्ट प्राइस ले रहे हैं वेंडर से, और एडवांस गोल्ड देके बाय कर रहे हैं हम लोग इन्वेंट्री। क्या बात है! तो इतनी लिक्विडिटी आ गई सिस्टम में? यस सर, मतलब 1/5 हो गया तो उसका भी प्राइस बेनिफिट उठाना बेटर हुआ, और उससे क्या है, रोटेशन भी बेटर हो रहा है प्राइस बेनिफिट के साथ साथ। तो लिक्विडिटी के साथ साथ रोटेशन भी बढ़ गया है। मतलब उसके क्रेडिट लाइन हम लोग यूज करते थे, न्यू ऑर्डर आने पे ही उसका पेमेंट देके न्यू ऑर्डर प्लेस करते थे। अब क्या है कि एडवांस जा रहा है तो प्रोडक्ट डिलीवरी भी फुल स्पीड से आ रहा है। जो पहले का टाइट 5 days था वो 2 days में आ रहा है माल, बिकॉज उसको मालूम है एडवांस का क्लाइंट है, इसका माल पहले निकाल के दो। Very nice, very nice, excellent. So net, if you were to summarize, what were all the results you got, और family life और personal life पे क्या फर्क पड़ा? सर मतलब लास्ट टाइम ऑल्सो द शेयरिंग वाज फ्रॉम स्टारबक्स, इफ यू रिमेम्बर। तो ऐसा अभी कुछ भी ऐसा हेल्ड अप वाली चीज नहीं है कि अभी कोई बोल दे चल जाते हैं बाहर, जैसे आपका था 11 बजे लेके निकलो। so, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये 6 days a week ऑफिस अटेंड करना है तो ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो इट्स वेरी नाइस। आई एम गोइंग ऑन
1 month holiday also after next week to the US. ब्रिलियंट, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। और साथ साथ प्रॉफिट अपने आप डबल हो रहे हैं। हो रहे हैं सर, हो रहे हैं। It's going, it's good. The team is doing really very good work. तो आप कह रहे हो कि छुट्टियां भी मनाओ, ऐश भी करो और प्रॉफिट भी डबल कर लो। Yes sir, absolutely. गुड 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 गुड, एक्सीलेंट जी, बहुत बढ़िया। एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट, आस्क फास्ट। Yes, any jewelers over there or anybody for IMS? ज्वेलरी वाले लोग कुछ पूछना चाहते हो? ज्वेलरी, अरे सारे ज्वेलर उछलते रहते हैं। ओके, वेरी गुड। ओह, so if you can share your number. Yes, I will put my number in the chat box. Anybody? हाँ, आप लोग अपना, मनोज अपना क्वेश्चन टाइप कर दो। सर ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीसी इश्यूज, ईए इश्यूज, these are the regular things that will keep happening and always keep happening. In fact, I had called sir in between. मतलब ये चीजें काफी डिप्रेसिंग भी हो जाती है, इतना मेहनत करते हैं अपन टीम के ऊपर और कोई अट्रिशन के लिए हो जाता है। मैं पर्सनली सर को इस बात पे फोन किया था काफी डिप्रेस होके, और सर ने एक साइन समझाई थी मुझे फोन पे जो एकदम से दिमाग में हिट हो गई। सो आई वुड लाइक टू शेयर सर, इफ यू अलाउ दैट ऑल्सो। हाँ, तो आई हैड कॉल्ड सर बिकॉज हमारे में लेबर अट्रिशन बहुत होता है, टेक्निकल लेबर, कारीगर्स एंड प्लस दिस पीसी स्टाफ, और ये तो होता ही रहता है। तो सर ने क्लियरली समझाया कि वो लेबर का सैलरी कितना है और आपको वो कितना हिट हो रहा है। तो अगर आपका रेवेन्यू को खाली 10% ही हिट हो रहा है तो व्हाई डोंट यू हायर एक्स्ट्रा पीपल एंड कीप ऑलवेज बैक एंड पे ट्रेनिंग देने के लिए। So you will never have the problem of attrition or the labor leaving you. And this hit me really good. So I started calculating कि अगर एक लेबर का X amount salary है लेकिन मुझे उससे X amount का नुकसान हो रहा है, तो which is hardly 10% only, अगर मुझे और cost add करना है, तो it's better to always have an extra team of labor and doing an R&D department कि अगर कुछ जाता भी है तो उसका replacement हो जाता है। But I would like to share much above that कि अगर आपका FMS और PMS बरोबर है, आपका टैट प्रॉपर चल रहा है और आपका फ्लो सबसे बेस्ट चल रहा है, योर टीम विल नेवर लीव यू बिकॉज दे विल बी द हैप्पीएस्ट टीम डूइंग दिस जॉब फॉर यू। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। वो कोई पूछ रहा था कि जी अगर आपका डेटा कोई चेंज कर दे तो क्या हो, कोई गलत डेटा डाल दे? सर तो डेटा तो मैंने जैसे बताया कि शीट पे तो अभी कोई काम ही नहीं कर रहा है, सब गूगल फॉर्म से ही जा रहा है। तो अगर कुछ डेटा गलत जा भी रहा है तो नेक्स्ट स्टेप अटक जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज फिजिकल गुड्स तो मैच ही नहीं होगा नेक्स्ट स्टेप पे जाने को, तो वो वापस अटक ही जाएगा वो स्टेप पे। तो मतलब कोई गलत डेटा डाल सकता है क्या? गलत डेटा डाल नहीं सकता है। इनफैक्ट इस पे एक और शेयरिंग है बिकॉज ऑफ ज्वेलर्स ऑन बोर्ड ओवर हियर। सो व्हाट वी हैव डन कि यूजुअली न्यू हायरिंग के लिए उनको ज्वेलरी का बैकग्राउंड नहीं होता, तो वो लोग काफी मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि 23 ग्राम्स को 32 ग्राम्स टाइप कर देते हैं। तो ये 10 ग्राम के पीछे हम लोग को 2 घंटा ज्यादा था टैली करने को कि ये कया किधर 10 ग्राम। सो व्हाट वी डिड कि अवर केबल, मतलब एवरी वेइंग स्केल पे हमने केबल कनेक्ट कर दिया टू दी एफएमएस ओनली, मतलब डायरेक्टली टू दी कंप्यूटर। सो जैसे ही वेइंग स्केल पे प्रोडक्ट या ज्वेलरी डाल रहा है, वो सामने वेट सीधा एफएमएस के कॉलम में आ रहा है। वहां पे गूगल फॉर्म पूछ रहा है मूव टू नेक्स्ट स्टेप, मतलब पॉलिश में देना है, यस दबाओ तो यस उधर इशू हो जाता है। मूव टू सेकंड स्टेप रोडियम में फिर से बताओ, आपने क्या किया? आपने वेइंग स्केल को सब वेइंग स्केल को केबल कनेक्ट कर दिया विद द पीसी सर। मतलब मतलब हम लोग हर प्रोसेस में रिसीव करते हैं, वजन करते हैं गोल्ड को, और नेक्स्ट प्रोसेस में इशू करते हैं। तो वो जब वेट करते हैं वो प्रोसेस का, तो वहां पे पीसी बहुत एरर्स कर रही थी, मतलब टाइपिंग एरर्स होते थे मेजरली। तो अभी क्या है कि जैसे ही वेइंग स्केल पे प्रोडक्ट रखा है तो वो स्केल पे जो दिखा रहा है वेट, वही वेट सीधा एफएमएस पे दिखाता है सामने। वेरी नाइस, वेरी नाइस। केबल कनेक्ट हो गया है और वो गूगल शीट से चलता भी है, तो हमने ये फाइंड आउट किया, मंगाया स्पेशली उसको वेइंग स्केल वाले को पूरा सॉफ्टवेयर, उसको बोला कि ये अपडेट करके दे, और वो हिसाब से हर जगह पे वो केबल लगा दिया है। तो ये इशू अभी आ ही नहीं रहा है एरर का। तो अब आप वो एंट्री नहीं करता उस, आप सिर्फ केबल, वहां वो केबल, वो वेइंग स्केल लिखा हुआ है और वेइंग स्केल पे माल रखो और वो ऑटोमेटिकली गूगल पे वो डेटा एफएमएस चढ़ा देता है। गूगल आपके वो पर्टिकुलर कॉलम पे जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा है, वो वहीं पे वेट रीड करता है जहाँ कर्सर रखा है। वेरी नाइस। और गूगल फॉर्म आता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। सो वी हैव प्री डिफाइंड
find every column with the next step. तो automatically वो उसको सोचना नहीं है. It's like a duffer's guide. वहां पे नेक्स्ट स्टेप का गूगल फॉर्म अपने आता है. इशू टू पॉलिश क्लिक करो तो वही वेट शिफ्ट होती है पॉलिश में. इशू टू रोडियम क्लिक करो तो वही वेट शिफ्ट होती है रोडियम में. तो और ये weighing scale is connected to Google. weighing scale is connected to your laptop or to your PC and you're working on the Google sheet. Very nice, excellent. बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया. वो कोई पूछ रहा है जी प्रोडक्शन पीसी ने कोऑर्डिनेशन कैसे मैनेज की इंस्टेड ऑफ फैक्ट्री मैनेजर. सो प्रोडक्शन मतलब आपके राइट नाउ भी जो डेटा एंट्री पर्सन होंगे वहां पे, जो अंडर द मैनेजर डेटा एंट्री कर रहे होंगे, दैट इज द पर्सन एंड दैट इज योर पीसी. उसी को आपको सब सिखाना है और उसी को अपग्रेड करना है. इनफैक्ट नई कोई पीसी आती भी है तो वही सिखा देती है उसको भी एवरीथिंग, बिकॉज ऑलरेडी देयर इज समबडी इन योर फैक्ट्री हु इज डूइंग द डेटा एंट्री फॉर ऑल दीज एंट्रीज जो चल रही है, प्रोसेस चल रही है. उनको ही अपन ट्रेन करें तो सबसे बेस्ट है. वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया. और आपकी पीसी ऑफिस बैठती है फैक्ट्री बैठती है? फैक्ट्री सर, our office and factory is on the same premises. अच्छा, सेम ही प्रेमाइस है. ओके जी, ओके, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, वेरी 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 गुड. And so guys, ladies and gentlemen, if you liked what Pankaj had to share, can all of us unmute and thank Pankaj for taking out his valuable time. And Thank you, Pankaj. Thank you so much. Pankaj. लोग भी चार को Thank you very much. Thank you, Pankaj ji. Thank you. आभार पंकज जी, थैंक यू सो वेरी मच. Thank you so much, Pankaj ji. Great sharing. Some sharing, Pankaj ji. You're from Bombay. Thank you. Thank you, Pankaj ji. Thanks a lot. Thanks a lot. Thank you, Pankaj ji. Thank you. very nice, very nice. Thank you, Pankaj ji. Superb share. मजे आ गए जी, मजे आ गए. गुड, ग्रेट, गुड. मेरी टीम भी यहाँ पे है. मेरी टीम भी आपको थैंक यू बोलना चाहती है बिकॉज दे हैव आल्सो रियलाइज कि उनकी भी पूरी लाइफ चेंज हो गई है इस काम करने से. हमारा भी काफी सारा स्ट्रगल हो गया है. बहुत सारा दिखाओ जी, मिलाओ जी. एवरीबॉडी ऑन द कैमरा. Thank you, sir. So we want to thank you. Thank you जी. So I hope life has become better and simpler. Yes, sir. Yes, Very nice, excellent, excellent. अब आप पूरा सिस्टम आराम से चला पाते हैं? सब खुश है सर, सब खुश है सर, खुश है. और yes, sir. Yes. Good, good, good जी, good, 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 excellent, excellent. चलो जी, this is really nice. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you जी, thank you. everybody. All the best to you for your VMP journey. Very nice, thank you. ये मजे ले रहा है, कहता मेरी तो हो गई, अब तुम्हारी रह गई. करो करो, लगे रहो मुन्ना भाई, तुम्हारे को अभी लगेंगे 4-6 महीने और. नहीं सर, ऐसा नहीं है. अच्छा है, गुड गुड गुड. सो गुड जर्नी सर. बाद में एहसास होता है कि जर्नी कितनी अच्छी थी, क्या क्या मिस कर रहे हैं हम लोग. वेरी नाइस. तुम्हें कैसा लगता है कोर्स खत्म होने के बाद? सर अभी तो ऐसा लगता है कि आपसे मिलने को बहुत मजा आता है सर. वो मंडे, एवरी मंडे मॉर्निंग और शेयरिंग करो, बताओ क्या हो रहा है. so we miss all that. And I would like to also share one more thing sir to the group कि जब तक कोर्स चालू है ना, तो अपना ये मोटिवेटिंग फैक्टर चालू है, एंड दैट इज ड्राइविंग अस टू डू दिस. जैसे ही कोर्स खलास होएगा, बिलीव मी एवरीबॉडी, ये पूरा पावर, एनर्जी, मोटिवेशन सब बंद हो जाता है. तो जितना कर सकते हैं ना ड्यूरिंग द कोर्स, प्लीज प्लीज ट्राई टू डू इट. उसके बाद इट बिकम्स मोर एंड वेरी मच डिफिकल्ट टू डू, बिकॉज देयर इज नोबडी यू आर वाचिंग. सर एवरी टाइम हर सेशन में रिपीट कर रहे, चिल्ला रहे, कह रहे, होमवर्क दे रहे हैं, और वो हम लोग को ड्राइविंग फोर्स है. बहुत टाइम क्या होता है, सेशन लंबे हो रहे हैं, 3 बजे तक हम थक जाते हैं, यू नो, वी आर सीइंग द सेशन. बट बिलीव मी, द एंड में क्वेश्चन आंसर्स आर द अमेजिंग टाइम आल्सो टू स्पेंड विद सर, एंड दैट इज आल्सो मोटिवेटिंग कि दूसरे क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक. सो ड्यूरिंग द कोर्स ही कर लो जितना कर सकते हो. आई वुड जस्ट शेयर दिस. सर ये शेयरिंग से बड़ी बात बता दी इन्होंने, मतलब मजा आ गया ये बात सुन के कि बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली है कि ये करना है और अभी करना है. थैंक्स अ लॉट. वेरी नाइस. स्टार्टिंग के ना 3-4 वीक में कुछ समझ नहीं आते. वो 3-4-5 वीक में ना सब लोग का चल रहा है, कर लेंगे, नोट्स भी नहीं बनाते, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, नोट सीरियस हो जाते हैं, देखना सीरियस हो जाता है, और सर का मोटिवेशन ही
मेन है कि जो चाहिए हमको कोर्स खलास होने के बाद इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट. वी वांट टू कम बैक लाइक टुडे आल्सो. आई वांट टू कम बैक टू द सेशन एंड सी अगेन व्हाट इज हैपनिंग. ऐसा है. वेरी नाइस जी, वेरी नाइस. सर गुड इसमें एक और चीज ये पता चला कि नेक्स्ट ईयर इस टाइम मैं या मेरे बैच मेंबर शेयरिंग कर सकते हैं. हाँ हाँ, कोर्स खत्म होते ही, द डे योर कोर्स गेट्स ओवर, ये पंकज पहले ही 2-4 बार शेयरिंग कर चुका है. और बैक बेंचर था सर, बैक बेंचर. हम में तो वो ऋषभ और ये सभी आगे है, सचिन, ऋषभ, हिमांशु. वेरी Pankaj ji, in which week did you start really feeling the change or realizing that there is more adaptability from your side? This is really a good question. It's a hard hitting question. So see, क्या होता है ना, first to absorb what sir is saying, it is your alignment. The main thing is कि आप सर की साइंस से अलाइन कब हो रहे हो. कि सब सर कह रहे ये कर दो, हम सोचते हैं कि ये क्या करेगी. सब सर सोचते पीसी कर दो, अरे एक और हायर करना है, खर्चे करने हैं. जिस दिन आपका फर्स्ट सक्सेसफुल हायरिंग रहेगा या फर्स्ट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन रहेगा ना, आपका अलाइनमेंट उस दिन रहेगा. दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर. बिकॉज हम लोग सोचते खर्चे हो रहे हैं, हम लोग सोच रहे ये सब करना है, इतना सीखना है, इतना करना है, किसको सिखा दे, अपना टाइम नहीं है. इनिशियली हम लोग का अलाइनमेंट विद सर इज डिफिकल्ट, the batch, the students. But the day first success, the day first implementation happens now, you will get up at 4 AM, you will see, सब holiday छोड़ दोगे और जहाँ पे भी बैठो आप सेशन अटेंड करोगे. आप अपना ग्रुप सेशन भी वेडनेसडे वाला जो है आप स्टूड के अटेंड करोगे. You will start doing it only when you achieve something. So the first thing, the one thing. whatever it is. तो वेडनेसडे मीटिंग इंपॉर्टेंट थी क्या? आपने अटेंड करते थे क्या आपकी जो वेडनेसडे मीटिंग होती थी? सर हम लोग की तो आई थिंक इट वाज द स्टार्ट कि हम लोग ने कुछ ऐसा स्टार्ट किया कि हम लोग रिवीजन कोर्सेज चालू किए और मीटिंग्स चालू किए करने के लिए. तो वी ऑल कलेक्टेड टुगेदर कि हमारे प्रॉब्लम्स है, लेट्स डू अ मॉर्निंग सेशन और साथ में बैठ के यस इनिशियली अटेंड करना चालू. हाँ, मैं कह रहा हूँ वाज दैट इम्पोर्टेंट फॉर यू क्या और नॉट, और मतलब उससे फर्क पड़ा क्या? So it is very important. It is very important क्योंकि हम काफी लोग क्या सोचते हैं कि वहां पे वही लोग बात कर रहे हैं जिन्होंने अचीव कर लिया और जिन्होंने इम्प्लीमेंट कर लिया, और हम लोग खाली सुन रहे हैं. वन साइडेड वी आर नॉट एबल टू शेयर बिकॉज वी हैव बीन इम्प्लीमेंटेड एनीथिंग. बट द पॉइंट इज अंडरस्टैंड द अदर वे. इट इज हेल्पिंग यू वेक अप एट 4 AM. It is helping you understand the systems that they are doing. Just choose what you want to do ना. मतलब आपको जो implement करना है आप वही चीज को choose करके आप कर लो. आपको सब कुछ नहीं करना है, no problem. But the sharing से मालूम पड़ता है कि what all is achievable. तो आज भी वो sharing का जो है एक एक चीज हम लोग पकड़ के आज भी implement कर रहे हैं जो उस टाइम पे नहीं की थी. जो core है वो कर लेना है, बाकी सब चीज तो we can always do later. But वो sharing से ही मालूम पड़ता है कि लोग क्या क्या कर रहे हैं. Very nice, जी, very nice, excellent. So thank you so much once again, Pankaj. Thanks a lot. Thanks for taking out time. And again, as usual, मैं तो कल रात को ही फोन करके बोला कि आ जाओ और and you said let's do it. So thank you for that, Pankaj. Really, thank you. And ladies and gentlemen, can we once again thank Pankaj for just jumping in and taking out time? Thank you very Thank much. you, Pankaj ji. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Beautiful share. Thank you. Thank you. Pankaj. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you everybody and all the best to you. Okay, ji, Pankaj, thank you and bye bye. See you. Bye bye, Pankaj. Okay, ji, bye. Thanks. Thank you so much.